Hi, good afternoon. Welcome back to my videos on an academy. My name is Pratik Gupta and today जो हमारा लेक्चर होने वाला है आप जानते हैं कि for the last few days we are discussing about the question asked by the UPSC in the prelims paper, the most difficult one, and moreover in one of the lecture we also discussed about the questions which was the easiest one, the 20 questions we discussed. ठीक है, तो आज हमारी सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इनसे ज़्यादा मुझे मतलब मान के चलिए आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट इवन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द प्रीलिम्स पेपर. These are, I would say, the final set of questions in this particular series of lecture. Okay, आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. एज यू नो दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 10th of October, and the timings I'm going to announce this week only because the things will be finalized by now, by that time. And currently my course is going on for the purpose of NCERT, so you people, if you want to join that also, you can also join, because you people will be able to get the access of the recorded lectures. So whatever lectures we have done till now, so as we have started on 8th of September, so I would say till now we have done around 8 or 9 classes in total we have completed, and only 2 topics we have done till now. We have done the topic of GDP and we have completed the topic of banking over there. So if you still want to join, then you can simply join for it. But when you join it for the purpose of 10% off, you can use my code PGUPSC. Okay. Now let's discuss further. Now, why you need to join Unacademy? You know, it is India's largest learning platform. Then the toppers choose the Unacademy, so you also need to go for it. Then the best educators, as you know, as per your choice, you can simply go for it. Then after that, you can join us on the Telegram and moreover on the community link of the Unacademy app. Then currently 10% off is going on. So for the iconic course, you need to pay for 36 month, you need to pay 4741, and for the this what you say, the plus courses, you need to pay 2697 per month for 36 months. So you can also go for the combo subscription. Here you need to pay 2911 for the plus courses and you need to pay 4391 for the iconic courses. Okay, and then you can go for the subscription courses separately. So for 36 month you need to pay 1500 rupees only after the my code PGUPSC. So from 15th of September they have started the bilingual batches and moreover the Hindi batches, so you can join as per your requirement. Combat is going on, as you know, that the first rank will get a Samsung mobile, and the 250 lucky participant will get a gift voucher worth of 5000 rupees up to. Okay. And then 2023 mains test series has been started, so you can simply enroll for it. Iconic subscription benefit, you know, so you can simply go for it. And 0% EMI, you also know this thing that on the given number you can simply call them, and then you will be able to know that how you can opt for the 0% EMI. Now let's come back to the questions of the UPSC prelims examination. Now, this is one of the questions that was asked by UPSC in 2020 prelims examination. I would say whatever series of questions we are going to discuss today, I won't say these are very, very tough, but I would say these are kind of a moderate level of tough questions. And 2 or 3 questions, you know, I'll discuss in this particular series, which are being which looks like very easy, but when it comes to solving it, there is a requirement of a good amount of logic over there. Okay, कई बार देख ले, कई बार देखने में क्या आता है कि जब कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हमें दिखाई देता है तो हम उसको बहुत ही जल्दीबाजी में उसको आंसर करके निकल जाते हैं, और जब पता लगता है उसके आंसर के बारे में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2020 के प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहे हैं if another global financial crisis happens in the near future, which of the following actions / policies are most likely to give some immunity. Immunity का मतलब होता है इनमें से कौन सी चीजें इंडिया को बचाव करेंगी अगर ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आता है. क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर ग्लोबल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो हमें भी इम्पैक्ट करती है. अगर यूएस इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है या मान लीजिए वहाँ पे स्लो डाउन है, तो कहीं ना कहीं when the imports from USA will go down from India, then certainly you can say our markets will be impacted. Okay, if the people in USA are losing job and you can say the unemployment is rising over there, then certainly you can say people who are being living over there, they will start demanding lesser goods of us, and then after that our exports will go down. Moreover, when the Indian people who are working there, their jobs are also being impacted, so in a certain way you can say that is also going to impact the
remittances which are going to come to our country. Getting what I'm saying? So in a way, at a global level, anything will happen. Specifically, if we talk about the big nations like USA, UK, European Union, China, Japan, these kind of country, if we talk about, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो मान के चलिए पूरे वर्ल्ड को वो इम्पैक्ट करेंगे. ठीक है. अब देखिए कहीं ना कहीं सिंपल सा लॉजिक है. अगर हम 3 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो इन 3 स्टेटमेंट में देखिए एक स्टेटमेंट ऐसी तो बहुत ही सिंपल है एनालाइज करने के लिए बाकी 2 स्टेटमेंट के कंपैरेटिवली, क्योंकि बाकी 2 स्टेटमेंट में काफ़ी डाउट्स निकल के आते हैं. जैसे देखिए अगर यहाँ पे आप स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 2 में यहाँ दिया गया ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स. देखिए सिंपल सी बात है, अगर फॉरेन बैंक्स इंडिया में हैं और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं और उनकी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है, then certainly you can say as their country is being impacted, that is also going to impact us also. So that means if you open up more and more foreign banks in case of our country, it is going to impact us more if there is a global financial crisis. So in this case, the statement number 2 is 100% incorrect. ठीक है. अब देखिए जैसे सेकंड स्टेटमेंट को मैंने एलिमिनेट किया और मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को यहाँ पे हटा पा रहा हूँ, तो मान के चलिए अब मुझे केवल ये देखना है कि 1 और 3 में कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट है. क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ पाता इन दोनों में से ये दोनों ठीक है या दोनों गलत हैं. बट हाँ कभी कभी ये डाउट जरूर होता है कि इनमें से ज़्यादा ठीक कौन सी हो सकती है. अब देखिए थर्ड पॉइंट को आप देखेंगे, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. आप जानते हैं जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करता है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब इकोनॉमिक्स वो पढ़ते हैं तो सबको ये पता है कि इंडिया में वी हैव दी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और नॉट. नो, वी डोंट हैव. वी हैव फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वी हैव इन आवर कंट्री. ठीक है. जब आप पढ़ते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट दी फेमा लॉ 1999, it is being clearly given over there that in case of our country, current account transactions are permitted and the capital account transactions are prohibited unless and otherwise they are being permitted in case of our country. यानी कि आप जानते हैं we have something called partial capital account convertibility. और capital account convertibility के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसको हम अलाउ कर दें, so you can say India is being more immune to the global shocks. Getting, and that's why we are not allowing it. Getting what I'm saying? So in this case, अगर हम इसको सही मान लें जो कि स्टेटमेंट ठीक नहीं है, आप जानते हैं थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो इफ यू मेंटेन, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ही गलत दी गई है, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. वी डोंट हैव फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन केस ऑफ आवर कंट्री. सो ऑटोमेटिकली यू कैन से इन दिस केस इफ आई नीड टू चूज बिटवीन 1 और 3, और अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को भी थोड़ा बहुत जानता हूं, so I can eliminate the third one and my answer will be what? My answer will be A only, not depending on short term foreign borrowings. ठीक है. अब देखिए मैं इसको एनालाइज करूं या ना करूं, it doesn't matter to me at all here. Getting what I'm trying to say? So in this case answer will be A. ठीक है. तो एक बात बहुत सिंपल सी है, देखिए जब आप पेपर में डिफिकल्ट कंडीशन में फंस जाते हैं, डिफिकल्ट कंडीशन इन व्हाट सेंस कि आपने 40-45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं जिसमें आप पूरी तरह से श्योर हैं और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं और बेसिकली कहीं ना कहीं सर्टेन है कि पेपर क्लियर नहीं होने वाला है. सो उस सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चन हमें हेल्प करते हैं. मान के चलिए आई वुड से दोज क्वेश्चंस व्हिच आर हैविंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स ओवर देयर, दे आर बीइंग कंपैरेटिवली इजी टू आंसर इन कंपैरिजन टू द क्वेश्चंस व्हिच आर ओनली हैविंग ABCD ऑप्शन. पॉइंट समझ पा रहे हैं? अब आगे देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखिए 2020 प्रीलिम्स का अगेन. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चारों स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें से आपको केवल एक या दो स्टेटमेंट में आप कंफर्टेबल होंगे. क्योंकि देखिए 91 के बाद जो हम चीज़ों को पढ़ते हैं, हम जब स्टडी करते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, तो इन चीज़ों के बारे में हार्डली हम ध्यान देते हैं. Okay, we are being more bothered about कि what was all given in 1991 economic policy that was given by government of India. अब उसके बाद इकोनॉमी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पर प्रोडक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, देखिए वो जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उस सिचुएशन में देखिए अगर इन चारों स्टेटमेंट को आप आराम से पढ़ेंगे
और यहाँ पे अगर आपको इकोनॉमिक्स के इन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज है भी नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ किसी को भी नहीं होती है, ठीक है, इतना डीप में अगर आपने पढ़ा भी हो तो इतने ज़्यादा फैक्ट्स याद नहीं रह पाते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, लाइक व्हाट दे आर सेइंग, वर्कर प्रोडक्टिविटी रुपीज पर वर्कर एट 2004-5 प्राइसेस इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज while it decreased in rural areas। नहीं पता है भैया हमें। The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased, हुआ है नहीं हुआ है, I really don't know। The rural areas, the growth in the non-farm economy increased, ये भी नहीं पता है मुझे। The growth rate in the rural employment decreased। ठीक है, अब देखिए चारों ही स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत यहाँ पे इनडिफरेंट है, पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा ये सोचने विजुलाइज करते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं देश के अंदर, तो देखिए जब हम थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। ओके, you know this thing as we have huge amount of workforce in the rural areas and we are also facing the problem of disguised unemployment। okay, यानी कि एक ही फील्ड पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू वट एवर नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसलिए गांव में अब क्या देखने को मिला है, दैट नाउ पीपल आर बीइंग शिफ्टिंग टू मोर ऑफ नॉन फार्म बिजनेसेस। ओके, they have the agriculture with them, but the point is what, now with the help of certain amount of machines and the other, you need lesser amount of people over there। so in this scenario the rural areas, the growth in the non farm economy increased। पर देखिए इस चीज को मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। हर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन का आंसर क्या है। वहीं देखिए अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में सोचता हूं, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द थर्ड वन अगेन, द परसेंटेज शेयर इन द रूरल एरिया इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज कंपैरेटिवली इजी टू एनालाइज, व्हाई, दे आर सेइंग द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि वर्कफोर्स के अंदर रूरल एरियाज में वर्कफोर्स में कमी आई है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ माइग्रेशन ओवर देयर। okay, so that has not increased, that has actually being decreased। तो कहीं ना कहीं देखिए सेकंड स्टेटमेंट में आई कैन टेक अ चांस, क्योंकि कॉमनली ये देखने को देश में नहीं मिल रहा है। और अगर देखिए ऐसा है और अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को लेके थोड़ा सा श्योर हो गया हूं, सो आई कैन एलिमिनेट ए एंड आई कैन एलिमिनेट डी ऑल्सो। यानी कि देखिए मेरी थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है, बिकॉज दोनों में थर्ड दिया गया। Now I need to see whether fourth is being correct or not। The growth rate in the rural employment decreased। Okay, now this statement whether it is being kind of I can hold it or not। देखिए आप जानते हैं अगर आप ग्रोथ रेट की बात करेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट की, तो वो भी कहीं ना कहीं आप माइग्रेशन वाले पार्ट से जोड़ सकते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू कैन आल्सो कनेक्ट विद दी migration part again, as the migration is being happening and the more and more pressure is there on the urban area, so I can say कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को भी ठीक कहा जा सकता है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर चांस लेंगे और थोड़ा ठंडे दिमाग से आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टेटमेंट बी पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो देखिए बहुत जरूरी होता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, यू नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड। इफ इन हरी देन सर्टेनली देयर इज अ पॉइंट कि जिन क्वेश्चन को आप थोड़ा एनालाइज करके थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। गेटिंग, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रिम्स के बारे में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं। तो यहाँ पे WTO में जब आप डिस्कस करते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलता है कि दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द FDI एंड FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाती है। अब देखिए जहाँ पे जब हम इन तीन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो देखिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। ओके, they apply to investment measures related to trade in both goods and services, and then they are not concerned with the regulation of foreign investment। अब देखिए
तीन स्टेटमेंट में केवल और केवल यहाँ पे अगर स्टेटमेंट नंबर 2 को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसी स्टेटमेंट को हम इजीली एनालाइज करके एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर ये जान सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। क्योंकि देखिए, they apply to investment measures related to trade in both goods and services, because you know this thing, when it comes to promoting trade in goods, we have GATT agreement of the WTO, and when you talk about the services, it is talking about the GATS. Okay, so point is what, it is not applied here, it is basically something else. तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पा रहा हूं, बिकॉज इफ यू रीड WTO you will get to know कि these two agreement are talking about the trade related to goods and services. So in this case, the second statement is being kind of incorrect. I can eliminate this, and I can also eliminate this particular thing. Okay, so in a way, what is the right answer? The right answer is C. फिर वही बात आती है, अगर यूपीएससी ने यहाँ पे जो ऑप्शंस बनाए हैं उनको बनाने में थोड़ी सी और यहाँ पे मान के चलिए समझदारी दिखाई होती तो इस क्वेश्चन को वो और टफ बना सकते थे। क्योंकि देखिए, जब इन दो स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे डाउट माइंड में आते हैं कि वाई दे हैव प्रोवाइडेड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, और आर दे रियली नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, बिकॉज रेगुलेशन और मैनेजमेंट में फ़र्क होता है, बट कहीं ना कहीं इसको लेके स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे एग्जाम में व्हेन दे रेड अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो देखिए, second statement is being kind of easy to analyze. As I told you, when you have multiple statements in a particular question, it is comparatively easy to simply provide the answer. That's what I am saying कि यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 को जब आप पढ़ेंगे तो इसको एनालाइज करना कंपैरेटिवली ईजी है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी थोड़ा ईजी है। परंतु जिस तरह के ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन वाज कंपैरेटिवली टफ इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Okay, now let's move to the next question. See this one. इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान के चलिए, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 3 5-year प्लान के बारे में बात की गई है, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर देखिए, हम नॉर्मली बात करें, जब हम तैयारी करते हैं 5-year प्लान्स की, हम स्टडी करते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, तो नॉर्मली मान के चलिए हर टीचर, हर फैकल्टी सेकेंड 5-year प्लान नॉर्मली हमेशा पढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बात की जाती है महालनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जिसके अंदर हमने अपने कंट्री में लिबरलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखिए, सेकेंड 5-year प्लान वाली स्टेटमेंट को पढ़ के समझ पाना या एनालाइज कर पाना कंपैरेटिवली ईजियर है। क्योंकि देखिए, फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमिन्ड थ्रस्ट towards substitution of basic and capital goods industry. Okay, there was determined thrust towards substitution of basic and capital good industry. क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? आप जानते हैं कि we started providing more and more things here because so that we will be able to substitute the foreign things by way of making things here only. यानी कि पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारी, और अगर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है then I can eliminate B and C point here. और अगर 1 and 2 इसमें भी है, 1 and 2 इसमें भी है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। द फोर्थ 5-year प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्ली ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। मुझे नहीं पता है ठीक है या नहीं है, बट जिस तरह से मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, उस केस में मान के चलिए कि मैं कह सकता हूँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, in the fifth 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. अब देखिए, कहीं ना कहीं जो फिफ्थ 5-year प्लान भी है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है जब हम तैयारी करते हैं। जैसे देखिए, मैं अपने एग्जाम में, जब मैं क्लास में स्टूडेंट्स के साथ ये टॉपिक डिस्कस करता हूं, सो आई नॉर्मली डिस्कस ओनली द सेकेंड 5-year प्लान एज व्हाट आई सेड, बट एज वी नो दैट एवरी 5-year प्लान सपोज टू बी नोन टू ईच एंड एवरीवन, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक 4 पेज का छोटा सा हैंड आउट बनाया। 4 पेज मीन्स बैक टू बैक 2 pages only. So there is a 4 pages of handout which I constructed, and under that what I have done, I have simply mentioned all the 5-year plan with 6-7 lines only, with the main objectives of the plan, what was the target growth rate,
and whether we have achieved that growth rate or not, and what was the final result of the 5-year plan. यानी कि मान के चलिए केवल इतना नोट्स के अंदर दिया गया, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इजीली यू कैन से यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. एंड मोर ओन ओवर what is extra is being given over there with the headlines of the 5-year plan कि उस 5-year plan का मेन मोटो क्या था. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. अब देखिए 5th 5-year plan को जैसे हम अपने नोट्स में देखते हैं तो वहां पे हमें पता लगेगा वहां पे एक मोटो था गरीबी हटाओ का. ओके, there the government was mainly concerned about taking care of the unemployment problem in the country, so they were not bothered about this financial sector here. Okay, so that's why if I will read that particular class notes, okay, और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मान के चलिए अगर वो पिक्चर है तो उस केस में मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से सॉल्व कर सकता हूँ. So still remember, you know, when this exam happened in 2019, few students came to me and they said कि सर अच्छा हुआ हमने वो पढ़ लिया क्योंकि हमें लगा था कि उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट आपने हर बार जब भी हमने आपसे पूछा था क्लास के अंदर कि सर 5-year प्लान पढ़ने या नहीं पढ़ने, क्योंकि देखिए हर बैच में स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर 5-year प्लान पढ़े या ना पढ़े, और मेरा आंसर यही होता है सारा मत पढ़िए, केवल और केवल जो नोट्स आपको 4 पेज के दिए गए हैं उनको रेफर कर लीजिए, उनको 2-3 बार रीडिंग मार लीजिए टाइम टू टाइम, एंड देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर the basics about that and you will be able to answer the questions. Getting what I'm saying? Somehow those who read it, they did it. Those who didn't did it, you know, they faced a problem. Getting? और देखिए मैं आपको बताऊं क्लास में स्टूडेंट्स जो होते हैं उन सबको एक ही मटेरियल दिया जाता है, बट पॉइंट यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं कभी कभी टीचर्स की एडवाइस सुनते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम दे नेवर लिसन टू देम, एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दे फेस दिस प्रॉब्लम. तो उसी साल मान के चलिए जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया उनमें से एक टॉप भी कर गया इंडिया के अंदर, एंड यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट गॉट द फर्स्ट रैंक लेटर ऑन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है बट इसको मैंने यहाँ इंक्लूड किया क्योंकि मान के चलिए स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में इसको लेके थोड़े कंसर्न होते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, नहीं पता होता है. अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम हो गए थे, और कॉमनवेल्थ गेम में आप जानते हैं कितना अच्छा खासा करप्शन देश के अंदर हुआ था. In terms of economy, the visit of foreign nationals to witness this particular Commonwealth game in India amounted to what? Export, import, production, consumption. भयंकर confusion थी साहब, भयंकर confusion. In fact, I also attempted that particular paper when I appeared. और मुझे अच्छे से याद है कि जब ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में पेपर में बैठा था और जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और समझा तो समझ के दिमाग में चारों ही ऑप्शन करेक्ट लगने लगे थे जब मैंने अलग अलग तरीके से दिमाग लगाया. और मान के चलिए अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने कहा प्रतीक लीव इट, डोंट डू इट. गेटिंग टाइम से, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने आसान होते हैं व्हेन इट कंपैरिजन टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आई होप you will understand what I'm trying to say, and I really hope that some of you must be will be agreed with this particular point which I am saying. अब देखिए मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन. अब देखिए बाहर से जब कोई हमारे देश में आएगा तो क्या लाएगा, काजू किशमिश तो लाएगा नहीं वो. व्हाट दे विल ब्रॉट फॉरेन करेंसी हियर. व्हेन दीज पीपल विल ब्रिंग फॉरेन करेंसी टू माय कंट्री, ओके, so they will use this thing for the purpose of buying different goods and services here. Okay, so in a way you can say inflow foreign currency and the consumption of Indian goods and services. Okay, same way if we talk about in this particular question about the exports की बात करें तो exports में क्या होता है, इंडिया से चीजें हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं to people. That means they're going to consume our goods and they are going to simply provide foreign currency to us. दोनों मैच कर रहे हैं. देखिए they are consuming our goods and services and they are bringing what, they are bringing us the foreign currency. The same thing is happening here. ठीक है. अब देखिए जब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कुछ लोगों ने इस तरह सोचा कि जब वो लोग आएंगे तो हमें यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इट टू देम, सो दैट लीड्स टू प्रोडक्शन. कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आएंगे, सामान बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे तो कंजम्पशन होगी. बट देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एग्जैक्टली मैच कर रही हैं. सो दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए ओनली. गेटिंग, बिकॉज देखिए अभी हमें पता है एनालाइज करना बहुत आसान है, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. इसलिए व्हाट इज बेटर, इट इज सिंपली बेटर टू सिंपली
लीव द क्वेश्चन। गेटिंग, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत बहुत आसान देखने में, आई वुड से। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ द क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज। अब देखिए, जैसे ही स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को पेपर में देखा, आंसर मार्क किया आरआरबीज, क्योंकि अगर रूरल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इट्स दी आरआरबीज ओनली। बट भैया क्या है, ठीक है। अब देखिए, आरआरबीज जो होते हैं, दे आर ऑब्वियसली more available in case of rural areas. Okay, but if you see the size of these banks are very very small in case of our country. Few crores rupees, 10 20 30 40 50 crore rupees, they are being able to start. आरआरबीज में स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक है, एंड देयर इज अ स्टेक ऑफ स्पॉन्सरिंग बैंक आल्सो, एंड व्हेन यू गो देयर, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन टू द पीपल हु आर बीइंग लिविंग इन द रूरल एरियाज। वहीं पे देखिए, जब आप बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की, बात करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अ बैंक विच इज हैविंग डिपॉजिट्स वर्थ ऑफ ऑलमोस्ट 700 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक एंड दैट इज इन दी टॉप 50 बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं इन इंडिया दैट द बैंक्स नीड टू प्रोवाइड 40% ऑफ द लोन टू द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर की बात करते हो तो आप जानते हो उसमें से 18% ऑफ द लोन्स आर बीइंग फिक्स्ड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। सोच के देखिए, अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे लोन इन बैंकों के सारे लोन्स पे भारी पड़ जाएंगे। इसलिए देखिए, कई बार क्या होता है, इन क्वेश्चन देखने में बहुत बहुत ईजी लगते हैं ना, वो बहुत टफ होते हैं और उनमें अच्छी खासी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी क्वेश्चन में इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी द साइज नॉट द नंबर ऑफ बैंक्स। बट देखिए, वहां पे आपको पता ही जल्दीबाजी होती है, नहीं समझा, नहीं करा, सिंपल क्वेश्चन लगा, फटाफट मार्क किया। बट ध्यान रखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी कई बार बहुत टेक्निकल होता है। इसलिए देखिए, ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन तो ज़्यादा हड़बड़ में उसको नहीं लगाएं। रीड द ऑप्शंस केयरफुली एंड व्हाटएवर यू हैव रेड, अप्लाई सम ऑफ योर नॉलेज एट लीस्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू अप्लाई लॉट ऑफ नॉलेज कि जितना आते सब उड़ेल दी। नो, सम बेसिक नॉलेज यू नीड टू अप्लाई। गेटिंग? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables. अब देखिए, थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो बहुत भयंकर कंफ्यूजन होती है, और मान के चलिए स्टूडेंट्स को लगता है अगर ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं टेंजिबल यानी कि फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज की बात नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है, इंटेंजिबल की बात होती है। एंड दैट्स व्हाई पीपल थॉट दैट द स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट, इज बेसिकली द करेक्ट वन। ओके, बट देखिए, जब आप पहली और दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि पहली स्टेटमेंट तो गलत है। इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, इट्स नॉट अबाउट मोर ऑफ मनी, इट्स मोर अबाउट इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज बेसिकली देयर इन द पॉइंट नंबर 2। तो अगर पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है तो देखिए, मेरी किस्मत में तो केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है। ठीक है, एंड अबाउट द टेंजिबल वेल्थ, आप जानते हैं तो टेंजिबल वेल्थ आपको पता ही है, टीवी, फ्रिज, एसी की तो बात करनी नहीं। और देखिए, यूपीएससी यहाँ पे बहुत समझदार निकला है, तीनों ही में थर्ड स्टेटमेंट को नहीं दिया गया है, तो यानी कि गड़बड़ है। बट दो तो सब में है, दो तो करेक्ट है। अब देखिए, आई नो इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, इट्स नॉट अबाउट मनी, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दैट मीन्स आई कैन एलिमिनेट वन मोर हियर। अब बचा फोर्थ वन। 90% of the students, I'm telling you, marked option C as a correct one. I'm telling you, they marked C as a correct option. But in reality, I'm telling you what is the correct answer. Intangible wealth means what? You've been taking patents in your name. You are taking various logos in your name. You've been having some sort of copyrights in your name. That is your intangible wealth, not the one that you've been thinking here. Getting? तो कहीं ना कहीं देखिए, मान के चलिए ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होना जायज है, और 50-50% चांस है ठीक होने के या गलत होने के। ठीक है, क्योंकि देखिए, शायद अगर मैं भी एग्जाम में बैठा होता एज अ कैंडिडेट हु इज बेसिकली द न्यू टू द यूपीएससी प्रिपरेशन, इतना डीप में नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मुझे पता है, बिकॉज वी पीपल आर बिंग टॉकिंग अबाउट, वी पीपल आर बिंग स्टडिंग अबाउट दी ट्रिप्स एग्रीमेंट, वेन इट डिस्कसिंग एंड रीडिंग अबाउट द WTO, बट हार्डली वी बिन टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स देयर। किसी बैच में मुंह से निकल गया, किसी बैच में मुंह से नहीं निकला।
पॉइंट समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए कंटेंट तो जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम ही है, बट कहीं ना कहीं कई बार होता है ना कि जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं क्लास के अंदर तो कई बार कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपकी निकल जाती है, और वो क्यों निकल के आती है? व्हेन द बैच बेसिकली दैट यू बीइंग टीचिंग is being kind of more interactive, they're being more discussing things with you. वरना तो मैं आपको बताऊं मोस्टली टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हम क्लास में बताते हैं, दे बेसिकली लिसन टू अस एंड देन आफ्टर द क्लास विल बी ओवर एंड दे विल हार्डली कमिंग फॉर द डाउट्स आफ्टर दैट. Getting what I'm trying to say? But I'm telling you, those batches which are more interactive in nature, there you can say students are being able to gain more. क्योंकि देखिए होता क्या, कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, उनको आंसर करने के लिए यू नीड टू सिंपली एनालाइज एंड यू नीड टू टेल देम सो मेनी अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई समटाइम यू एंड अप टेकिंग मोर क्लासेस ओवर देयर. सो आंसर हियर इज बेसिकली बी, नॉट सी हियर. गेटिंग? सो डू रिमेंबर, अगर आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी क्लास करते हैं, किसी से भी क्लास करते हैं, अगर आप थोड़ा प्रिपेयर होकर जाते हैं ना, तो मान के चलिए यू विल बी एबल टू टेक आउट मोर फ्रॉम द फैकल्टी इन कंपैरिजन टू व्हाट ही इज गोइंग टू डिलीवर देयर. गेटिंग? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है FRBM एक्ट का, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था. डिस्पाइट दैट the things which are being given here was came in 2016 when the NK Singh committee gave the recommendation regarding the FRBM Act. ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं. The FRBM Act Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% for the central government, 20% for the state government. करेक्ट है, हमने पढ़ा है इसको. सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्या है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटी 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दी like when you talk about the state government they have given here, so there's some sort of kind of incorrect line has been given. 49% of GDP of the state government, that is the right statement here. ठीक है, तो मान के चलिए इस क्वेश्चन के सेकेंड स्टेटमेंट में what they have done, they have interchanged the numbers here. That is basically of 49 and that is basically that time was 21%. As per the Constitution of India, it is mandatory for the state to take the central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liability to the latter. अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, थोड़ी बहुत जो नॉलेज है आपकी अटैच कर दी है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ा है और वहाँ पे आपने आर्टिकल 293 रेफर किया है तो आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे, और अगर आपने रेफर नहीं किया है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी. सो दिस क्वेश्चन इज बीइंग मोर टफ बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 3. बट देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या करी है यूपीएससी वालों ने कि थर्ड स्टेटमेंट को 3 स्टेटमेंट में दे दिया है. ठीक है, अब देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आई एम एबल टू एलिमिनेट द पॉइंट नंबर 2 हियर. ओके, दैट मीन्स इफ द फर्स्ट इज करेक्ट 1 and 3, 1, 2, 3, और सेकेंड स्टेटमेंट मुझे पता है कि वो इनकरेक्ट है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. सो इफ आई एलिमिनेट डी आल्सो हियर, सो इन दिस केस आई एम लेफ्ट विद ए एंड सी. ठीक है, अब थर्ड सही है नहीं कहीं है. अब देखिए कहीं ना कहीं जब आप बात करेंगे इस तरह से, जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के आप देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस के लिए हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं. सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ पावर आल्सो. ओके, एंड दैट्स व्हाई when you analyze in this particular way, obviously कहना आसान है अभी. okay, so in this way option 3 will be correct. That means 1 and 3 are the right statements here. Getting? Now let's move to the next question. Consider the following statements. Again they've been talking about what? This question is basically from the capital market topic of 2021 prelims examination. Now see here, retail investors through demat account can invest in treasury bills and government of India dated bond in the primary market. आप जानते हैं डीमेट अकाउंट से आप पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट को करंटली फॉलो कर सकते हैं. तो उस केस में पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई करेक्ट, यानी कि मेरा गया ऑप्शन सी. अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज समथिंग व्हिच इज नॉट नोन टू पीपल. आई एम टेलिंग यू मोर बिकॉज देखिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में और उसके बारे में हार्डली ही आप मान के चलिए क्लास में डिस्कशन होती है. बट हाँ, पॉइंट नंबर 3 जो है वो मुझे पता है, क्योंकि जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं NSDL एंड CDSL के बारे में, सो वी पीपल आर बीइंग टेलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द देयर वर्किंग, दैट हु आर द मेन प्रमोटर्स, ओनर्स एंड द अदर, एंड फॉर whom they are working. They are working for NSC, they are working for the BSC here. So in this case the CDSL is jointly promoted by the RBI. RBI का देखिए रोल ही नहीं है कहीं पे भी यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है.
तो ये इनकरेक्ट हो गई, सो दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद ओनली 1 and 1 and 2। अब देखिए बात यही आती है कि कहीं ना कहीं इसमें तुक्का ही मारा जाए, क्योंकि अगर मुझे सेकंड नहीं पता है, क्योंकि देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज मोर अबाउट व्हाट, या तो पता है या नहीं पता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मान के चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लिंक हम बिठा पा रहे हैं, वो क्या है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, यू नो दिस थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट इज बीन कंट्रोल्ड बाय आरबीआई ओनली। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चांस लेके बी को टिक कर सकता हूँ। देन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है। गेटिंग नाउ लास्ट देखिए क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में जब आया था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्ड इट रॉन्गली, ठीक है, और सबको लगा बड़ा आसान क्वेश्चन है। बट देखिए क्वेश्चन आसान नहीं था, आसान ही गलत ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए कैजुअल वर्कर के बारे में जो हम बात करेंगे, जो भी हमारे तरीके हैं, जो भी हमें बताया गया है, उस केस में मान के चलिए हमें आइडिया ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जिस क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं जिसके लिए बहुत ही वास्ट नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको बताऊं, पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। तो देखिए ये जो चीज क्वेश्चन में दी गई ना कहीं न्यूज में थी, ठीक है, कि जो भी कैजुअल वर्कर है उनको पीएफ की जो कवरेज है वो मिलनी चाहिए, सो दैट दे विल बी एबल टू गेट अ बेटर जॉब सिक्योरिटी, दे विल बी एबल टू गेट बेटर फ्यूचर सिक्योरिटी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं देखिए पहली स्टेटमेंट तो जो निकल के आ रही है वो ठीक है, अगर आप नॉलेज नहीं भी है ज़्यादा तो मैं केवल एलिमिनेट कर पा रहा हूं बी को। अब देखिए सेकंड एंड थर्ड पढ़ेंगे तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम। ये देखिए ये तो केवल पॉसिबल फॉर्मल सेटअप में ही होता है, दैट इज नॉट kind of possible in case of a informal, or moreover in case of casual worker setup. Okay, so that's why you can say if the statement number 2 is incorrect, so I can eliminate this and I can eliminate this and I can say option number C is correct here. Getting what I am saying? So here in this way I can simply say that this kind of question again obviously isn't kind of tough, but कुछ कई बार देखिए जब हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो देखिए लॉजिक वही आता है कि अगर आप काम एंड कंपोज्ड हैं तो इजीली हो सकता है, और काम इन कंपोज नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे 10 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस लास्ट सीरीज, जो हमारा फोर्थ लेक्चर आज जो हमारा है। इसके बाद आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस एनीथिंग मोर, बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट लास्ट 14 years paper from 2009 till 2022 I have seen the paper and I don't found even more questions which have been kind of difficult। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो देखिए सारे के सारे डिफिकल्ट ही कहे जा सकते हैं, इजी भी कहे जा सकते हैं, डिपेंड करता है, अगर सब कुछ पढ़ा है तो सारे इजी हैं और कुछ नहीं पढ़ा तो सारे डिफिकल्ट हैं, आप जानते हैं, दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी बीइंग प्रिपेयरिंग थिंग्स इन अ बेसिक वे, और कहां कहां पे हमें बेसिक प्रिपरेशन के बाद दिक्कत होती है क्वेश्चंस को समझने में, तो केवल मैंने उसी लॉजिक को ध्यान में रखे इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में हमें इतना ही डिस्कस करना था, आने वाली क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में यूट्यूब के ऊपर मोर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाकी आप जानते हैं डाउट दरबार इज गोइंग ऑन, सो यू कैन सिंपली एनरोल फॉर इट। So as you know, today is 18th of September, so only 3 classes are being left. September 27th you can go for history and geography, September 28th you can go for economy, environment and science and technology, and September 29th you can go for polity, current affairs and IR, and the timings 5 p.m, 5 p.m and 7 p.m. So that is all I need to tell you. Chaliye, thank you very much, take care and bye bye, and do remember the date, 10th of October 2022 we are going to start a comprehensive batch for economics, which is going to be very very important for both prelims and mains examination for 2023 candidates and 2024 candidates. Chaliye, take care, bye bye.